Good morning, everyone. Let's start today's class. So we were trying to solve exercise 8.2. Today I'll tell you remaining questions. Exercise 8.2, I had told you question number 1, question number 2, question number 5, and today I'll tell you question number 7. So that's a very interesting question. So let's see what is that. Now in question number 7, ABC is a triangle, triangle right angle at C. That means ABC आपके एक triangle है जो कि right angle है at point C. So now I am going to draw its diagram. So चलिए इसका diagram draw करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या find करना है. ठीक है. So I am going to draw a right angle triangle here. So this is your first side of the triangle. This is your second side. And this is your third side. ठीक है. This is your triangle. So in this triangle, this is given that point C is right angle. जो point C है ये हमारा right angle है. So now I am going to indicate this is point C. ये point C है. This is right angle. That right angle means 90 degree. Let us see, this point is A and this is B. ठीक है. A line through the midpoint M of hypotenuse AB. Midpoint M, ये midpoint M है of hypotenuse AB. जो hypotenuse इसका है AB, इसका midpoint है M. So I am taking this point M. Midpoint, this is M. And parallel to BC intersect AC at point D. That means इस point M से हम एक लाइन ये ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगी BC के, पैरेलल होगी BC के. So let's draw a line from point M which is parallel to BC, which is parallel to BC. Now this line segment is meeting on point D of line AC. Line AC के point D पे ये meet कर रही line segment. So I am going to write the name of this point is D. ठीक है. Show that, हमें show करना है, क्या show करना है? First part, D is the midpoint of AC. D हमें show करना है D एक ये midpoint है AC का. Okay. Second, MD that is perpendicular on AC. जो ये MD लाइन सेगमेंट ये परपेंडिकुलर है AC के, ये हमें शो करना है. ठीक है. and in third part we have to show that CM equal to MA. Where is CM? This is C and this is M. So that means here is required to draw a line here. ठीक है ना, from C to M. So I am going to draw a line here, CM. This is CM. CM equal to MA. CM equal to MA, ये line show करना है, and that is equal to half of AB. Half of AB. तो ऐसे 1 by 1 चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं. So now proof. I am going to write here directly proof. हम यहाँ पे सिर्फ directly proof लिखेंगे और बाकी जो चीजें given है वो हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा. ठीक है. चलिए in part A. ठीक है. So in part A we have to prove that D is the midpoint of AC. तो अब इसको कैसे prove करेंगे? So we know that this is point M and this is the midpoint of AB. Midpoint means AM equal to MB. AM equal to MB. So using midpoint theorem, अगर midpoint theorem का हम लोग यूज करते हैं तो M is the midpoint. So AM equal to MB. Here AM equal to MB. ठीक है. ओके.
and also this is given that this line segment DM, this is parallel to CB. This is given. DM is parallel to CB. ठीक है ना, देखिए ये गिवन है इसमें, ठीक है, पैरेलल टू BC या CB। सो ये जो गिवन था हमने सिर्फ उसी को यहाँ पे राइट किया। सो अगर आप ध्यान से देखें, इफ यू try to analyze these things, you will get that this is here is giving two conditions of your midpoint theorem। midpoint theorem की यहाँ पे आपके पास two conditions हैं। एक तो ये है कि एक point ये midpoint है, and also जो लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रही that is parallel to each other, ये दोनों parallel हैं। So we can say that the point D is also a midpoint। point D भी ये एक midpoint है, क्योंकि ये हमारे DM and CB are parallel and M is also a midpoint। So we can say that therefore point D is a midpoint, ठीक है ना, point D is a midpoint, ठीक है। That means AD equal to DC, AD equal to DC, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं आगे, AD इक्वल टू DC, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हम लोगों ने डायरेक्टली ये बोल दिया कि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ AC। सो फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूफ करना था, सो दिस इज प्रूफ हियर, फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ हियर, ठीक है। सो इस तरीके से इजी था मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करना। सो हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे अपना पार्ट 1। सो आई एम राइटिंग हियर प्रूफ, फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट we have to prove that MD is perpendicular on AC, MD is perpendicular on AC, we have to prove this, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। So for part 2 this is given that line segment या फिर side BC that is parallel to AC, ये given है हमारे पास, सॉरी परपेंडिकुलर है, लाइन the side BC is perpendicular on AC, है ना। सो इन ट्रायंगल ABC, अगर हम ट्रायंगल ABC में देखते हैं, सो व्हाट हैव वी, हमारे पास क्या है, वी हैव BC इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है ना, ये वाली साइड, ये जो BC है देखिए ये परपेंडिकुलर है AC पे। वाई हमने क्यों लिखा है, सिंस C इज एंगल C इज 90 डिग्री, ठीक है ना, एंगल C इज 90 डिग्री, ये गिवन है क्वेश्चन में। एंड वी नो दैट दिस BC इज पैरेलल टू DM, ऑल्सो BC इज पैरेलल टू DM, ये भी गिवन है, ठीक है। अब हमारी जब when these two line segment are parallel to each other, so here we see that हम लोग क्या देखते हैं कि AC एक ट्रांसवर्सल लाइन के तरीके बिहेव कर रहा है, ठीक है, AC एक ट्रांसवर्सल लाइन के तरीके बिहेव कर रहा है। सो इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस एंगल, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एंगल CDM, वैल्यू ऑफ एंगल CDM, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, अगर हमें ये फाइंड करना है। सो ये हमने ध्यान देखने पे क्या पता लग रहा है कि ये एंगल एंड these two angles are interior angles on the same side of transversal line, ठीक है। So if we try to write here that angle BCD plus angle CDM, इनकी वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री, कितनी है, 180 डिग्री, ठीक है ना। वाई, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इंटीरियर सप्लीमेंट एंगल, हम लोग को पता है कि ट्रांसवर्सल लाइन के जो सेम साइड पे
इंटीरियर एंगल्स होते हैं दोज आर सप्लीमेंट। अगर हम उन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यू आती है 180 डिग्री। ठीक है, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो सिर्फ हम उसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। So at this time we have angle C. Angle C means angle BCD. Angle BCD. The value of angle BCD is 90 degree. This is 90 degree plus angle CDM. This is 180 degree here. This is 180 degree here. So we have angle CDM. Angle CDM. इसकी वैल्यू कितनी, दैट मीन्स ये वाला एंगल वैल्यू कितनी जाएगी 180 माइनस 90 डिग्री करेंगे। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी 90 डिग्री। एंगल CDM इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स इस एंगल वैल्यू कितनी आ गई है, इस एंगल वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, ओके। सो व्हाट अबाउट एंगल MDA? एंगल MDA की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री। ठीक है ना, therefore angle MDA इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ये लीनियर पेयर है ना। एंगल CDM एंड एंगल MDA, दिस टू एंगल्स आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मींस इन दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। जब एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री तो दूसरे की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी। सो व्हाट वी सी हियर, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि द एंगल मेड बाय लाइन AC एंड लाइन DM दैट इज 90 डिग्री। ये वैल्यूज हमारी आ रही है एंगल की 90 डिग्री आ रही है। इसकी मीनिंग क्या है? द मीनिंग इज दैट AC इज परपेंडिकुलर ऑन DM। AC इज परपेंडिकुलर ऑन DM। ये जो लाइन AC है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन DM, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि MD, therefore MD DM, या फिर MD is perpendicular on AC। ठीक है ना, MD is perpendicular on AC। so in this way we can prove our second part। इस तरीके से हम लोग अपना ये सेकंड पार्ट प्रूफ कर देंगे। सिंपल है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो आप देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। इन थर्ड पार्ट दिस इज गिवन दैट CM इक्वल टू MA। वी हैव टू प्रूफ दिस, हमें प्रूफ करना है। CM मीन्स ये वाली लाइन जो ग्रीन वाली लाइन है, दिस इज इक्वल टू AM, ये इक्वल है। एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ दिस इज हाफ ऑफ AB की हाफ वैल्यू होगी। ओके, ठीक है। सो इसमें अभी हमें सिर्फ इतना अगर हम प्रूफ कर दें, CM की वैल्यू AM के इक्वल हो जाएगी। अगर हम ये प्रूफ कर दें किसी तरीके से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाफ ऑफ AB रहेगा। तो अभी कैसे होगा चलिए देखते हैं। नाउ टू प्रूफ थर्ड पार्ट, आई एम गोइंग राइट हियर थर्ड पार्ट। व्हाट वी डू, हम लोग क्या करेंगे, देखिए CM इक्वल टू MA है, CM इक्वल टू MA। अब इसमें हमें उन ट्रायंगल्स को लेकर के कंपैरिजन करना है जिसमें कि ये साइड से आए। सो वी सी दैट हियर वी हैव ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं और इसमें कुछ ना कुछ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे ताकि साइड्स को हम लोग कंपेयर करके इक्वल बता सकें। सो आई एम टेकिंग ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम ये लेते हैं, तो इनको लेंगे। नाउ सी इन ट्रायंगल ADM वी हैव AD एंड इन ट्रायंगल CDM वी हैव CD। सो AD इक्वल टू CD, आई एम गोइंग राइट हियर AD इक्वल टू CD। ठीक है, why these two equal? since D is mid point, D क्या है, D यहाँ पे एक मिड पॉइंट है। ठीक है, इस वजह से हमने ये इक्वल लिख दिया है। ओके, नाउ एंगल ADM दैट इज 90 डिग्री। एंगल ADM की वैल्यू है 90 डिग्री। सो आई एम गोइंग टू राइट एंगल ADM दैट इज 90 degree and this is equal to angle CDM, equal to angle CDM
एम, दैट मीन जो सेकेंड ट्रायंगल था, सेकेंड ट्रायंगल का एक एंगल है CDM, इसके इक्वल है, एंड दैट इज 90 डिग्री। ये है 90 डिग्री, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया था, है ना, ये यहाँ पे। सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल। नाउ हियर इज साइड DM और MD, साइड DM और MD, this is common, DM is common in both the triangle, ठीक है। so this is common, this is common। so अब देखिए हमें क्या मिल गया कि जो ये ट्रायंगल्स थे हमारे, इन ट्रायंगल्स के ये साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स वी हैव हेयर AD इक्वल टू CD, ये भी एक आपकी साइड है, क्या है, ये साइड है, एंड ये दिस इज सेकंड इज एंगल, एंड दिस इज DM इक्वल टू DM, दिस इज साइड। सो वी कैन से दैट, वी कैन देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ADM is congruent with triangle CDM, ठीक है ना। और बाई SAS क्राइटेरिया, बाई SAS क्राइटेरिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ये कॉन्ग्रेंट हमने प्रूव कर दिया है। देन आफ्टर दैट व्हाट वी डू, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देन आफ्टर दैट वी कैन draw conclusion, we can draw some conclusions here। so let us write some conclusions, जिसको हम लोग बोलते हैं corresponding part of congruent triangle। so हमने अभी क्या बोला, एंगल ADM, ये ट्रायंगल ADM दिस, एंड ट्रायंगल CDM, these two triangle are congruent to each other, okay। so this angle is 90 degree, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, AM, साइड AM, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री दूसरे वाले ट्रायंगल में, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, CM, दिस इज CM। सो AM इक्वल टू CM, AM इक्वल टू CM, ये वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी बाई CPCT, ठीक है ना, बाई CPCT। सो चलिए बाई CPCT, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बाई CPCT, ठीक है। तो AM इक्वल टू CM, देखिए एक पार्ट प्रूफ हो गया, CM इक्वल टू MA या फिर AM। सो वी कैन राइट हेयर CM इक्वल टू MA। ये देखिए एक वाला, एक ये पार्ट प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था, ठीक। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस विल इक्वल टू द हाफ ऑफ AB। अब ये प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, वी नो दैट, हमें ये पता है कि AM इक्वल टू MB, AM इक्वल टू MB है, ये हमें पता है। सो दैट मीन्स व्हेन वी ऐड AM प्लस MB, सो व्हाट वी गेट, अगर हम AM प्लस MB लिखें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, आई एम गोइंग टू राइट हियर, सपोज AM प्लस MB, हमने क्या लिखा, AM प्लस MB, दिस इज टोटल लेंथ ऑफ साइड AB, दिस इज टोटल लेंथ ऑफ साइड AB। now we have AM, this is equal to MB, so that means on the place of MB we can write MB, on the place of AM we can write, देखिए ये AM इक्वल टू MB हमारे पास है, तो MB के प्लेस हम यहाँ पे लिख सकते हैं AM इक्वल टू AB। ये हमने क्यों लिखा है, सिंस AM इक्वल टू MB, क्या है कि AM और MB दोनों इक्वल थे, तो इस MB के प्लेस पे हमने लिख दिया है AM की वैल्यू, ये लेंथ ही है तो हम लोग ऐसे रिप्लेस करके लिख सकते हैं। सो हियर इज AM प्लस AM 2AM, हियर इज 2AM इक्वल टू AB। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AM, AM की वैल्यू क्या है, दैट इज हाफ ऑफ AB, दैट इज हाफ ऑफ AB, AM की वैल्यू हाफ ऑफ AB आ गई है। AM मीन्स MA, वैल्यू हाफ ऑफ AB है, सो वी कैन राइट हियर दैट CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। MA की वैल्यू कितनी आई थी, ये हाफ ऑफ AB,
उसी को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग अपना पार्ट 3 प्रूफ कर लेंगे। इन दिस वे वी कैन प्रूफ आर पार्ट 3। ठीक, तो इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे हमने ये प्रूफ किया है। पहले हमने ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया, फिर ये सेकंड पार्ट इधर प्रूफ हुआ है, देन थर्ड पार्ट के लिए हमने ये इधर प्रूफ किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, आफ्टर प्रूविंग दिस वी गेट टू नो दैट सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है, ए एम नहीं, हाफ ऑफ ए बी है ना। तो ये करेक्शन कर दे रहे हैं हम, हाफ ऑफ ए बी। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया। देख लीजिए थर्ड पार्ट हमारा यही था। तो सिंपल है इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना, बट आप थोड़ा इस जब भी आए प्रूफ करने के लिए थोड़ा सोचिए कि क्या हम क्या चीज़ें लें और क्या कैसे प्रूफ करें, तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर दैट हेंस प्रूफ आफ्टर प्रूविंग ऑल दीज थिंग्स, हेंस proof. Yes, so I hope that you have enjoyed this. Now if you have any confusion you can ask me, I'll try to give solution of all your queries. Thank you.